everybody, my name is Fredu from Study Life. So today we are going to start a new chapter of Class 6 Exploring English Unit 5 Looking Back and Looking Forward. This is the chapter name. So now let's start Science Fiction or Science Facts. Here it is told that how would you feel if you were told that the mobile phone, the tablet, the touch screen, television, satellite communication, space travel, submarines, the internet, the atomic bomb, and even pre-packed foods were only one side they are called science fiction or sci-fi. And while people read about them with a lot of interest, they didn't think these would even come true. इधर कहा गया है आप कैसा महसूस करोगे जब आपको पता चलेगा जो मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट मतलब टैब, जो टच स्क्रीन वाला टेलीविज़न आता है जिससे हम लोग मोबाइल में टच करके कोई भी वीडियो वगैरह देखते हैं, वैसे टीवी में भी आता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जिससे हमारी बातचीत हो पाती है, स्पेस ट्रैवल मतलब स्पेस में जाना, सबमरीन्स, इंटरनेट, एटॉमिक बॉम्ब मतलब परमाणु बॉम्ब, और जो पहले से जो फूड्स के जो पैकेट वगैरह होता है वो पैक किए जाते हैं, वो ये सभी एक बुक के सिर्फ आइडिया होते, असली लाइफ में नहीं होते, और लोग इन्हें बुक की तरह बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत मज़े के साथ पढ़ रहे होते. सरप्राइज्ड? After that it is told that having the world at our fingertips is something that we take for granted today. However, even 150 years ago, things that we considered everyday objects today as aeroplanes, cars, telephones, radios, and even television did not exist. How then did all this come true? पूरा जो वर्ल्ड होता है वो 150 साल पहले उसमें ना ही कोई एरोप्लेन था, ना ही कोई गाड़ियाँ थी, ना ही टेलीफोन था, ना ही रेडियो था, और यहाँ तक कि टीवी भी नहीं था उस टाइम पे. तो ये सब चीज़ें आज कैसे आ पाई? The answer is human imagination. In fact, human imagination is the basis of human progress because human beings are always looking for ways to increase their knowledge and make life easier and better. इसका आंसर है human imagination मतलब मानव की मतलब humans की कल्पना. अगर जो ह्यूमन लोग हैं, जो हम लोग अगर कल्पना इन चीज़ों की करते नहीं तो हम लोग आज ये चीज़ें बना पाते. जो हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग वो तरीके ढूंढ रहे हैं हमारी नॉलेज को बढ़ाने का, हमारे जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसे इजी करने का, उसको अच्छा बनाने का, हमारी लाइफ को हम लोग ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं. पहले क्या होता था? पहले कोई चीज़ नहीं थी, मतलब पहले सुई वगैरह से कपड़े सीते थे, अभी मशीन्स वगैरह आ गई है, ऐसे हमारी लाइफ इजी होती जा रही है. When such ideas came to inventors who have scientific knowledge, they work on them and turn them into reality. However, when these ideas for scientific inventions occur to people who are not trained to work on them and turn them reality, they take the form of science fiction or sci-fi. पहले के टाइम में सिर्फ ये बुक के कुछ आइडियाज़ थे जो लोगों ने इन्हें वास्तविक रूप में लाया, मतलब रियलिटी में लाया, रियल लाइफ में लाया इन चीज़ों को. अगर ये आइडियाज़ पहले के टाइम में इन चीज़ों की कल्पना की नहीं जाती तो आज ये चीज़ें हमारे सामने आ पाते. जूलियस वर्नी, H.G. Wells, Arthur C. Clarke, and Aldous Huxley were some of the most famous sci-fi writers of the 19th and 20th centuries. Many of the productions that they made in their books and today's articles are today's reality. इधर कहा गया है जो जूलियस वर्नी है, H.G. वेल्स है, आर्थर सी क्लैर्क है और ऑल्डस हक्सले है, ये बहुत अच्छे साइफाई राइटर्स थे, मतलब अपने नॉवेल्स वगैरह में लिखते रहते थे. बहुत ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट थे. 1900 ईयर से लेकर 2000 ईयर तक ये बहुत जाने माने बड़े साइंटिस्ट थे. इन्होंने अपने नॉवल वगैरह, अपने किताब में कुछ ऐसे चीज़ों की कल्पना की थी जो आज हम लोग रियल लाइफ में देख सकते.
देख सकते हैं। जूलियस वर्नी रॉकेट शिप, अभी इधर बताया गया जो जूलियस वर्नी उसने रॉकेट शिप के बारे में कल्पना की थी और वो आज सच हो गई। In 1865, Julius Verne wrote From the Earth to the Moon, one of the earliest examples of modern science fiction. In this, more than 100 years after before man actually landed on the moon, he made surprising links, perfect prediction about lunar module, solar cells, and human landing on the moon. इधर कहा गया है 1865 में जो जूलियस वर्नी है उसने अपने नॉवल में लिखा था, उसके नॉवल का नाम था फ्रॉम द अर्थ टू द मून, मतलब अर्थ से मून पे। अभी उस समय इसने ये लिखा था कि मतलब कि पहले के टाइम पे लोग मून पे नहीं जा पाते, लेकिन आगे के टाइम पे ऐसे साइंस होंगी जिससे लोग मून पे भी जा सकेंगे। और 100 साल बाद ये बात सच निकली। बहुत सारे लोग मून पे जा चुके, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम। अभी द फर्स्ट मीनिंग आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब क्या होता है? द लूनार मॉड्यूल वाज अ स्पेसक्राफ्ट व्हिच वाज कैरीड वेंट टू द मून ड्यूरिंग 1960 एंड 1970। मतलब 1960 से लेकर 1970 तक लूनार मॉड्यूल एक स्पेसक्राफ्ट जैसा था जो लोगों को मून तक लेके जाता था। और अभी सेकंड मीनिंग है हमारा सोलार सेल्स। अब सोलार सेल्स मतलब सोलार सेल्स आर अ वे ऑफ मेकिंग स्पेसक्राफ्ट मूव फॉरवर्ड। सोलार सेल्स एक ऐसा तरीका है जिससे स्पेसक्राफ्ट बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, ऑर्थर सी क्लैर्क। ऑर्थर सी क्लैर्क सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस टूरिज्म, ऑनलाइन न्यूज़पेपर एंड टैबलेट कंप्यूटर। ऑर्थर सी क्लैर्क ने ये सभी चीज़ों का इन्वेंट किया था, इन चीज़ों के बारे में कल्पना की थी। The sci-fi legend Arthur C. Clarke wrote about communications, satellites and wireless world a full 10 years before their actual डेवलपमेंट। अभी तक आ गया है जो साई-फाई लेजेंड। अब साई-फाई लेजेंड मतलब क्या होता है? साई-फाई लेजेंड, अ लेजेंड इज अ पर्सन हु इज वेरी फेमस एंड ग्रेटली एडमायर्ड। एक लेजेंड एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा फेमस है और वो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है। अभी तक कहा गया जो ऑर्थर सी क्लैर्क है उसने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिससे हम लोग मोबाइल पर आजकल लोगों से कहीं भी उनसे बातें कर पाते हैं। और मोबाइल वगैरह में वायर भी नहीं लगी होती, जैसे कंप्यूटर वगैरह में लगी होती है वैसे वायर भी नहीं लगी होती। और ये उन्होंने 10 ईयर्स पहले कहा था, कल्पना की थी इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये 10 साल बाद रियल लाइफ में आ चुका है। In the 1968 film 2001, The Space Odyssey, based on Clarke novel of the same, two astronauts can be seen reading newspaper on something called the newspad, which looks very much like the modern day tablet. They are seen to call up the major electronic papers by punching in their suggestion. अभी तक कहा है 1968 की फिल्म में जो 2001 में बनी थी अ स्पेस ओडिसी, ये ऑर्थर सी क्लैर्क ने अपने नॉवल में इसका नाम डाला था। और उसने इसमें बताया गया था जो 2 एस्ट्रोनॉट है वो मून पे न्यूज़पेपर पढ़ते पाए गए हैं। और वो न्यूज़पेपर न्यूज़पैड था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेपर टाइप कह सकते हैं। आज के ज़माने में जिससे टैबलेट कहते हैं ना, वैसे ही न्यूज़पैड था जिसपे न्यूज़पेपर वगैरह सब चीज़ देख सकते थे। Space tourism. Space tourism was another feature of the movie which has now become a reality. Just as in the film, paying passengers can now actually travel to the International Space Station. Private companies are taking booking for suborbital and orbital space flights. In the longer term, hotels in space and even visits to the moon are planned. जो space tourism है, मतलब space में जाना, एक दूसरी कैसी चीज़ थी जिसने ऑर्थर सी क्लैर्क ने उसके बारे में कल्पना की थी। उसमें क्या लिखा था? उसने लिखा था कि लोग जो है आगे के टाइम में लोग पैसे दे के मून पे जा सकेंगे, लेकिन अब ऐसा सच भी हो गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बुकिंग ले रहा है और जो प्राइवेट कंपनियां वगैरह है ना, कंपनीज, वो भी बुकिंग ले रही है सब ऑर्बिटल। और सब ऑर्बिटल मतलब ऐसी चीज़ है जिससे इधर लिखा हुआ है सब ऑर्बिटल
Flight is a trip into space in which the spacecraft does not go into orbit or does not follow the curved path around Earth. एक सब ऑर्बिटल एक ऐसी फ्लाइट है जिसमें वो अर्थ के ऑर्बिट पे नहीं जाते हैं। और स्पेस टूरिज्म मतलब स्पेस टूरिज्म इज अ ट्रैवल इन स्पेस फॉर पर्पस ऑफ हॉलीडेज। मतलब स्पेस टूरिज्म जैसे हम लोग छुट्टियों में कहीं बाहर जाते हैं वैसे छुट्टियों में स्पेस में भी आ सकते हैं। स्पेस टूरिज्म मतलब वो होता है। अभी तो बताया गया प्राइवेट कंपनीज भी बुकिंग ले रही है सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट में, और ज़्यादा दिन तक रुकना हो तो वो स्पेस में होटल्स भी खोल रहे हैं। अब रेमोंड कुजवेल ने वायरलेस इंटरनेट, नैनो टेक्नोलॉजी, ई बुक और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कल्पना की थी। रेमोंड कुजवेल ऑफ गूगल हैज़ इन्वेंटेड टेक्स्ट रीडिंग सॉफ्टवेयर एंड रिटन 5 बेस्ट सेलिंग novels. He has made dozens of scientists prism with unbelievable accuracy. जो रेमोंड कुजवेल है उसमें गूगल में जो टेक्स्ट रीडिंग फीचर आता है, जैसे मतलब जो भी लिखते हैं वो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखा है, वो ऑटोमेटिक वो फीचर बोलता है हम लोगों ने क्या लिखा है, वो उसके बारे में उसने कल्पना की थी। और भी 5 अच्छे नॉवेल्स के बारे में कल्पना की थी। अभी द 1-2 बताए हुए हैं। फॉर इंस्टेंस इन हिज नॉवल द एज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स, Kurzweil had predicted a computer being the best human player at chess by the year 2000 and wireless internet becoming practical for normal day use in the early 21st century. इधर बताया गया है उसने अपने नॉवल में जो द एज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स था उसने एक कंप्यूटर के बारे में कल्पना की थी जो पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे अच्छा प्लेयर है चेस में। उसने 2000 में ये बात सच हुई। और वायरलेस इंटरनेट भी बना 21st सेंचुरी मतलब 2000 जब 21 ईयर चालू हुआ था जब उसमें वायरलेस इंटरनेट भी हुआ था, उसकी भी कल्पना सच हुई थी उसमें। वायरलेस इंटरनेट मतलब मोबाइल में कोई वायर तो नहीं लगे जिससे दूर दूर तक बातें कर पाते हैं, इंटरनेट चलता है, मोबाइल में कोई वायर नहीं लगी है इसलिए वायरलेस उससे कहते हैं। Now next, in the age of spiritual machines, he predicted e-books, face recognition software and nanotechnology। मतलब कि जो spiritual machines है उसके एक नॉवल था इन द एज ऑफ spiritual machines, उसमें इसने e-books के बारे में, face recognition सॉफ्टवेयर मतलब कि जो लॉक टाइप होते हैं जिससे फेस भी देख के पता कर पाते हैं फिर वो होम स्क्रीन में आ जाता है डायरेक्टली, इस सॉफ्टवेयर के बारे में। और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी दिया गया। फेस रिकॉग्निशन इज अ सॉफ्टवेयर दैट रिकॉग्नाइज अ पर्सन फ्रॉम द इमेज ऑफ देयर फेस। मतलब कोई भी पर्सन की इमेज हम लोग इस सॉफ्टवेयर के द्वारा पता कर सकते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी इज एन साइंस एरिया ऑफ साइंस इन विच एटम्स आर कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मटेरियल्स, डिवाइस एंड मशीन। नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी जगह है जिससे जो साइंस की जो फील्ड है उसमें प्रोग्रेस होती जा रही है। नाउ H.G. Wells ने एटॉमिक बॉम्ब डिस्कवर किया था। एटॉमिक बॉम्ब मतलब परमाणु बॉम्ब की कल्पना की थी। इन हिज नॉवल द वर्ल्ड सेट फ्री पब्लिश्ड इन 1914, फेमस साइ-फाई राइटर H.G. Wells wrote about the atomic bomb and its destructive potential। मतलब कि अपने नॉवल में जो H.G. Wells था उसने जो नॉवल है द वर्ल्ड सेट फ्री उसमें 1940 में उसने कहा था कि उसने कल्पना की थी इस चीज़ की परमाणु बम आएगा और जो बहुत डिस्ट्रक्टिव रहेगा, मतलब उसका जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। This came true in 1945 when the atomic bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki in Japan, ending the Second World War। ये बात सच निकली 1945 में जब जापान में 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुई थी। दोनों जापान की सिटीज है जिन पे एटॉमिक बॉम्ब परमाणु बॉम्ब गिरा गए थे और अभी उन सिटीज का नामो निशान भी नहीं था उस टाइम पे। Now next, authors Huxley, test tube babies and genetic engineering। अर्थस हक्सली ने टेस्ट ट्यूब बेबीज और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात की थी। अब इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया ऑल्थस हक्सली क्लासिक साइ-फाई नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड predicted the world in which he now live with amazing truth। The book was detailed description of genetic
genetic engineering, test tube babies, cloning, and genetic manipulation, which are now a part of modern society. So, can it truly be said that the science fiction of today is the scientific fact of tomorrow? अब इधर क्या कहा गया, इधर कहा गया जो ऑल्थर सेक्सले उसने टेस्ट ट्यूब बेबीज और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात की थी. अब टेस्ट ट्यूब बेबीज मतलब क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबीज इज एन ओल्ड फैशन phrase for a baby that developed from an egg that was taken from the mother's body, joined with the male cell, and then put inside the mother's body for the baby to grow. अब तक क्या कहा गया, जो टेस्ट ट्यूब बेबी, जो भी प्रेग्नेंट लेडी जो मां नहीं बन पाती है, उनका टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा उनका बच्चा पैदा किया जाता है. और अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द जेन्स और पार्ट्स ऑफ सेल दैट कंट्रोल द characteristics of the living things in order to improve a living thing. मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़, मतलब कि जैसे मानो कोई एक लड़के का पार्ट है और कोई एक लड़की का, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में के साथ बदला जा सकता है. और अभी क्लोनिंग के बारे में बात की गई है. क्लोनिंग इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग अ न्यू बट आइडेंटिकल एनिमल और प्लांट फ्रॉम द सेल्स और अनदर एनिमल और प्लांट. क्लोनिंग मतलब जिससे जैसे मानो मेरा क्लोन है, मेरा क्लोन हूबहू मेरे जैसा दिखता है, सेम टू सेम. और जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन इज द process of changing the genes parts of a cell that control the characteristic of a living thing in order to improve a living thing. अब इधर कहा गया जेनेटिक मैनिपुलेशन से कोई लड़का है लड़के तो फिर लड़का लड़की में बदल जाएगा, लड़की लड़के में. इसे कहते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन. ये सभी हमारे मॉडर्न सोसाइटी का एक पार्ट है. अभी तक कहा गया जो भी हम लोगों ने कल सोचा वो आज सही हो सकता है, और जो हम लोग आज सोचेंगे वो कल भी हो सकता है. अभी तक कहा गया एज वेल एज नॉट ऑल द प्रेडिक्शन कम ट्रू, हियर आर सम ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव वंस दैट वेंट रॉन्ग. हमारे पास ऐसा नहीं कि सारे करेक्ट मिले थे, उसमें से बहुत सारे गलत भी मिले थे, और उनमें से जो गलत चीज़ है वो आज इधर कुछ इम्पोर्टेंट में दिखाया गया है, और उनकी न्यूज़पेपर में भी बताया गया है. और रॉकेट विल नेवर बी एबल टू लीव द अर्थ एटमॉस्फेयर. ये कहा गया था जो रॉकेट है वो कभी भी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर उसे छोड़ के कभी बाहर निकलेगा. द न्यूयॉर्क टाइम्स 13 जनवरी 1920 में ये हुआ था, और ये कल्पना गलत हुई थी. There's no chance that the iPhone is going to get any significant market share. Steve Ballmer, USA Today, 30 अप्रैल 2007. इधर कहा था कि जो आईफोन है, जब हुआ था आईफोन को मार्केट में कोई मतलब लोग ज़्यादा आईफोन को नहीं खरीदेंगे, लेकिन आज के टाइम में लोग आईफोन को ही खरीद रहे हैं. ये न्यूज़पेपर में छपा था, USA टुडे के न्यूज़पेपर में छपा था, और उसकी डेट भी मेंशन की गई है 30 अप्रैल 2007. अभी तक कहा गया था रिमोट शॉपिंग वाइल एंटरिंग फिजिबल विल फ्लॉप. अभी तक कहा गया जो रिमोट शॉपिंग मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो फटाफट फ्लॉप हो जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग से ही मंगा रहे हैं. ये छापा गया था टाइम मैगजीन में 1966 को. अभी नेक्स्ट में दिया गया है दिस वॉज प्रूव रॉन्ग व्हेन अपोलो 11 लैंडेड ऑन द मून ऑन 20 जुलाई 1969. ये कहा गया था जो अपोलो 11 है वो कभी मून पे लैंड ही नहीं होगा, लेकिन वो लैंड हो चुका था 20 जुलाई 1969 को. अभी तक आ गया है well informed people know that it is the impossible to transmit the human voice over wires as may be done with dots and dash of Morse code. इधर कहा गया मतलब जो ह्यूमन की जो वॉइस है उससे वायर्स के थ्रू जब हम बात करते हैं वायर्स के थ्रू भेजा जाता है, नहीं, ये बात भी गलत हुई थी. तो ये न्यूज़पेपर आप बॉस्टन न्यूज़पेपर में छपी 1865 को. सो टिल हियर इज द चैप्टर. सो थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching. Bye bye.